Ever been in a position when you're always asking why? Thinking that your tears will never dry. Every time that you glance at the sky, your mind's there, but you know you don't got the wings to fly. You feel the wind gently touching your skin, and the voices from within are yelling you shouldn't try. But you're not listening, on your face is a grin. You take the chance even if you shoot into the ground. The world says no, but you say yes. Don't let the negativity take over, do your best. The road you're paving causes feelings that are hard to express, but I promise you that at the end lies the success. Your chest is heavy, all the burdens you carry are slowly taking a toll on your mental inside. I want you to give me a promise, and you to truly be honest, that giving up is never going to be what you decide. I know that you've been running your whole life, walking through the darkness with practically no light, feeling depressed, under pressure, a low life, like there's no one to help you to get through all the cold nights. Look in the mirror, tell me, what do you see? A person climbing to the absolute peak. Don't need excuses, cause you are not weak. So chin up and be the very best you can be. Hero, you are a hero. 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 Listen to the rain falling onto the windows, taking the whistles that appear as the wind blows. Remember as a kid for the ringtone, you had a great speech. Tell me, what did that kid know? He knew that failure is a part of success. He knew the lessons are what makes you progress. He knew your quest would put you under the stress, but he also knew the hunger that you truly possess. You've been a great one, still is what you're made of. You've been the same one ever since day one. Became a legend, haven't even finished phase one. Imagine what you'll be when you reach the main one. Unpredictable how one moment you're on the ground, and the next one you're flying high above the clouds. It's true, the higher you go, the longer you fall, but no matter what happens, you truly need to be proud. I know that you've been running your whole life, walking through the darkness with practically no light, feeling depressed, under pressure, a low life, like there's no one to help you to get through all the cold nights. Look in the mirror, tell me, what do you see? A person climbing to the absolute peak. Don't need excuses, cause you are not weak. So chin up and be the very best you can be. Hero, you are a hero. 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 You are a hero.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see. सर जी इन्हें का टाइम लगना रेडी होने जल्दी करो रेडी हो गया Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. तो दोस्तों जो आज का दिन है, आज से 5 साल पहले अर्शद जी का मैं जम्मू कश्मीर में बिजनेस स्टार्ट किया था, फॉरएवर लिविंग स्टार्ट की थी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मुश्किलें, बहुत कुछ फेस करने को मिला। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, जो सपने हैं वो आपके वाकई में सच होते हैं। और आज आपको उसकी एग्जाम्पल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर, दिस इज द पावर ऑफ टीम फायर 6। Thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. जैसे सर ने आपको बताया, आज से 5 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने थे मैं और मेरे साथ तरन सर और कुलदीप सर ने स्टार्ट किया था। बहुत सारी दिक्कतें आई थी, जैसे आप सबको आती है, बट एक चीज़ सिखाई गई थी एक ट्रेनिंग प्रोसेस से, और हमेशा सीनियर से जब भी मिलते थे इन्होंने ये चीज़ सिखाई थी कि बिलीव करो। Really, I feel excited at this moment when I'm seeing all youngsters with me, and just they are so jubilated at this moment कि वो thrilled इसको देख के। तो मुझे आज लग रहा है कि बाकी I can say that my son has won laurels because of that. This is the dedication which he has put. So I'm really proud of him. My family, we all are proud of him, and forever should be proud of him. हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सब लोग अच्छे से होंगे, होपफुली आप सबकी फैमिलीज में सब लोग अच्छे से होंगे। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सेशन। आप सबका वेलकम करता हूं मैं आप आज के स्टीम फायर के बहुत अच्छे सेशन में, जहां पे आपके साथ आज बहुत अमेजिंग जर्नी शो की जाएगी और शेयर की जाएगी। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से कनेक्टेड है, अलग अलग एरिया से कनेक्टेड है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग कनेक्टेड है, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग कनेक्टेड है। एंड सबसे बेस्ट चीज इस प्लेटफॉर्म की ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे रिलीजन, सारे प्रोफेशन, सारे अलग अलग एरियाज के लोगों को एक साथ लाके काम करवाता है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट फॉरएवर। मैं आप सबका आज वेलकम करता हूं। आज अपनी इस ट्रेनिंग में आप पिछले कुछ दिनों से बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग्स 9 बजे शाम को टीम फायर की लगाते हैं, और रेगुलरली मेरे को ये लगता है कि मैं भी उनमें से कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करता हूं, और मेरे लिए भी वो ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उन ट्रेनिंग्स में वो लोग सिखाते हैं जिन लोगों को फॉरएवर करते हुए टीम फायर के साथ अप्रोक्सीमेटली 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, एक बंदे को एक नया बिजनेस शुरू करने में और उस बिजनेस को चलाने में हद हो गई 1 साल या 2 साल उसका बिजनेस टिक पाता है। आपको वो लोग सिखा रहे हैं जो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 12 साल, 13 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ना कि सिर्फ काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक डिसीजन लिया है कि इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हाँ सर, हम इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं।
ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज आप लोगों को बहुत क्लैरिटी दी जाएगी, और मैं ये मानता हूं कि पिछले कुछ टाइम से आपको ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे सेशंस के थ्रू क्लैरिटी दी जा रही है और दी गई है कि कैसे ये सिस्टम आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। और मैं अपनी बात करूं, आज मेरा पार्ट आपके साथ भी बिल्कुल सेम है। मैंने भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह इस सिस्टम में काम करना शुरू किया, मैंने भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह इस सिस्टम को समझना शुरू किया था, और मैंने भी कहीं ना कहीं जो आपको चैलेंजेस आते हैं वही चैलेंजेस सिस्टम में फेस किए थे। आप सब समझिए, आप सब लोगों ने, आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से हमारे साथ कनेक्ट हुए हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, आप में से बहुत सारे लोग बाय प्रोफेशन किसी बिजनेस में होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग अभी स्टूडेंट होंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, जब मैं इस बिजनेस में आया था, या आज की जो हमारी ट्रेनिंग है इसका टॉपिक ये स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर, आज अपनी बात करूं, जब मैं इस बिजनेस में आया था, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। तो मेरी स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस ने कैसे चेंज लिया है और कैसे चेंज लाया है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मेरी मेरी इन बातों से आज आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो आज के सेशन से एक डिसीजन बना के जाएंगे कि कैसे ये इंडस्ट्री, कैसे ये सिस्टम, कैसे ये कंपनी और कैसे टीम फायर आपकी हेल्प कर सकती है ग्रो करने में। क्योंकि एग्जैक्टली मैं आज आपको दो चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, मैं आज आपके साथ अपनी एक जर्नी शेयर करूंगा कि आज जो आपका स्पीकर है, आज मैं आपके तक, यहां तक एज अ ट्रेनर, एज अ स्पीकर, एज अ अचीवर, एज अ क्वालिफायर कैसे पहुंचा, मेरी जर्नी क्या है, मैं कहां से बिलोंग करता हूं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, और मैं ये आज उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद मेरी बातों को अपने प्रेजेंट के साथ रिलेट कर सकें। क्योंकि समझिए, आज बेशक मैं फॉलोअर में हूं, आज मैं बेशक कामयाब हूं, आज मैं बेशक इस इंडस्ट्री में आके ग्रो कर चुका हूं, बट कहीं ना कहीं जब मैंने काम शुरू किया तो आई वॉज एग्जैक्टली लाइक यू। जो आप डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस फेस करते हैं, जो आप डे टू डे लाइफ में दिक्कतें फेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें मैंने भी फेस की हुई है। और उसके बाद आज आपके सामने एज अ ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर इस इंडस्ट्री में हूं, और उसके रीजंस क्या है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन में मैं आपके साथ वो भी शेयर करने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं, पहली मेरी जर्नी, और दूसरा कि अगर हमारे को वैसा रिजल्ट चाहिए उसके लिए क्या क्या एक्शंस रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों पार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग में लास्ट तक बैठना, और ट्रेनिंग में जरूर जरूर एंड जरूर ये पॉइंट्स नोट करना, क्योंकि मैं ये फील करता हूं कि अभी तक जितने ट्रेनर्स ने आपको सिखाया, बहुत सारी गर्ल्स थी, बहुत सारी हाउसवाइफ्स थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बैकग्राउंड बिजनेस था, बिजनेस से आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बैकग्राउंड एज बहुत कम स्टडीज वाला था। तो आपने बहुत सारे लोगों से सीखा है ना। और मैं आपको सच बताता हूं, अगर आप ये सब ट्रेनिंग्स का कॉम्बिनेशन ले लोगे ना, और इस कॉम्बिनेशन को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जो आप हमारी अचीवमेंट्स देख रहे हो ना, मैं बोलता हूं शायद ये अचीवमेंट्स आपकी अचीवमेंट्स के सामने छोटी पड़ जाएंगी। आप इतना कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके लिए टीम फायर ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स की ट्रेनिंग रखी हुई है। आप खुद समझिए, आपके लिए वो ट्रेनर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनके नीचे हजारों लोगों की टीम है, हजारों मैनेजर्स, हजारों सुपरवाइजर्स, हजारों एएस आपकी तरह काम कर रहे हैं। तो खुद सोचिए कितने लकी हो आप कि आपका सबसे पहले, कितने लकी हो आपकी आपने एक डिसीजन लिया फॉरएवर के साथ ज्वाइन करने का, और उससे भी ज्यादा लकी आप हो क्योंकि आपने डिसीजन लिया टीम फायर के साथ काम करने का। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात करूं, बहुत सारे लोग शायद काम करते होंगे, बट जो टीम फायर का कल्चर है वो बहुत ऊपर है। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं एक बहुत फार फ्लंग वाले एरिया से बिलोंग करता था। मैं उस एरिया से बिलोंग करता था जहां पे बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी होती थी, जहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे टीम फायर में आके जो सपोर्ट मिला ना, शायद ही वैसा सपोर्ट आपको कहीं और से मिल सकता है। और जो कल्चर है यहाँ पे, दैट इज बेस्ट। ठीक है जी। तो समझिए, आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। काइंडली जो अपनी स्क्रीन है, अपनी यूट्यूब की स्क्रीन है, इसको लैंडस्केप मोड पे डाल दीजिए, ताकि मैं आपके साथ मेरी बातों को आप अपने साथ रिलेट कर सको, मेरी जर्नी को आप अपने साथ रिलेट कर सको। ठीक है। और जल्द से जल्द अगर आपकी किसी टीम में
अब अभी तक इस सेशन को ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली कंफर्म, स्क्रीनशॉट मंगाइए, अपनी अपलाइंस को अपने ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट भेज दिए, ताकि आपकी कंफर्मेशन चली जाए कि हाँ आप एक्टिवली सेशन का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके साथ एक छोटी सी पीपीटी शेयर करना चाहता हूं अपनी जर्नी की, कि कैसे मैंने इस इंडस्ट्री में आके काम करना शुरू किया, हाउ आई स्टार्टेड, और कैसे मैंने इस इंडस्ट्री में आके कुछ अचीवमेंट्स हासिल की। ठीक है जी। तो अपनी बात करूं, नाम मेरा अर्शदीप सिंह सोडी है। इस इंडस्ट्री में एज अ सोरिंग मैनेजर वर्क कर रहा हूं। ठीक है। आप सोरिंग मैनेजर आपने सुना होगा, आपको जब मार्केटिंग प्लान, आपको जब कंपनी के प्लान के बारे में बताया होगा अपने कुछ फ्रेंड्स की तरफ से, या कुछ सेशंस के थ्रू आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया गया होगा, आपको बताया गया होगा कि एक एएस लेवल होता है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ टीम आप एक सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टीम आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, सुपरवाइजर पे आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है, असिस्टेंट मैनेजर पे उससे भी अच्छी इनकम हो जाती है, और जो हम सबका अल्टीमेटम गोल होता है दैट इज टू बिकम अ मैनेजर। मैनेजर का मतलब आपके नीचे बहुत सारे एएस काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सुपरवाइजर होते हैं, बहुत सारे लोग एएम बनने की फाइट में होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मैनेजर बन चुके होते हैं। तो समझिए आपकी फाइट मैनेजर तक है। बहुत सारे लोग अभी सेशन में ऑलरेडी मैनेजर्स बैठे होंगे, तो आप लोगों का टारगेट है कि हमने मैनेजर बनना। और मैं अपनी बात करूं, मैं सिस्टम में मैनेजर ही नहीं, सीनियर मैनेजर ही नहीं, सोरिंग मैनेजर हूं। सोरिंग मैनेजर का मतलब यह है कि जो अपने डायरेक्ट में, जैसे आप लोगों ने काम शुरू किया, मैंने अपने साथ भी कुछ लोगों को काम स्टार्ट कराया था, रेगुलरली काम सीखता रहा, समझता रहा, रेगुलरली नॉलेज देता रहा, और अपने साथ 5 से ज्यादा मैनेजर्स को अपने डायरेक्ट में मैनेजर बनाया है, तो जाके मैं सोरिंग मैनेजर बन गया। सोरिंग मैनेजर बहुत अच्छा लेवल, बहुत बड़ा लेवल हमारी कंपनी में होता है। बहुत सारे लोग सीनियर मैनेजर्स होते हैं, बट बहुत कम लोग सोरिंग मैनेजर्स होते हैं। और विद इन, मेरे को लगता है नेक्स्ट 2026 मिड में शायद सफायर मैनेजर भी हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत इंडस्ट्री में, ग्रोइंग इंडस्ट्री में हूं, और मैं क्यों आपके साथ ये आपके सामने कमिटमेंट कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिस टीम के साथ मैं पार्ट हूं, जिस इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूं, उसने तो ग्रो करना ही करना है। तो अब आप सब लोगों ने डिसीजन बनाना है कि भाई एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बनना है कि जो ग्रो नहीं कर रही है, या उस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहा है जो ऑलरेडी ग्रोइंग है। ठीक है। अपनी बात करूं, मेरी जर्नी सिस्टम में फ्रॉम स्टूडेंट टू बिजनेस ओनर स्टार्ट हुई। मैं अपनी सबसे पहली फोटो मेरी देख सकते हैं एज अ स्कूल, जब मैं स्कूल में जाता था, यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने काम कॉलेज के लिए गया। और जब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉलेज के लिए गया, उस टाइम पे मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया गया था। स्कूल में मैं भी आप ही की तरह था, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, आपको मैं आगे बताऊंगा। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे जब इस काम के बारे में बताया गया, मेरे को भी माइंड में, मेरे को भी बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे डाउट्स थे, पता नहीं होगा कैसे होगा। जब स्कूल में बात करूं, स्कूल में फ्यूचर के लिए कंसर्न्ड बंदा बहुत कम होता है, क्योंकि स्कूल में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है। जैसे जैसे बच्चा कॉलेज में जाना शुरू करता है ना, तब जाके वो अपने फ्यूचर के लिए कंसर्न्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉलेज में उसको कहीं ना कहीं अपने 20% 30% खर्चे खुद उठाने पड़ते हैं। एंड जब मैं भी कॉलेज में गया, तो मेरा भी फॉरएवर में आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मेरे ऊपर, मैं नहीं बोलूंगा घर चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हाँ, घर से दूर रहता था, एक फ्लैट में रहता था, एक खर्चा होता है जो अक्सर पॉकेट मनी से पूरा नहीं हो पाता, जो घर वाले बेचते। तो मैं भी चाहता था यार, चल कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाए, कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आने शुरू हो जाए, तो कोई नुकसान नहीं है। एंड आपके सामने आप मेरी फोटो, तीसरी वाली फोटो देख सकते हो, थर्ड फोटो इन अ रो, जिसमें मैं बैठा हुआ हूं पीछे ट्रेनिंग हॉल में, जिसमें बैठ के ट्रेनिंग लगा रहा हूं। आप सब लोगों ने क्लास में पढ़ी होगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायो की, आप सब लोगों ने बहुत अलग अलग क्लासेस पढ़ी होंगी, बहुत सारे पेपर्स को पास करने के लिए बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत सारी स्ट्रगल्स भी की होंगी। ठीक है। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं अपनी जर्नी, अपनी जुबानी बता रहा हूं कि मैंने आज तक बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे पेपर्स पास किए, जैसे आपने किए हैं वैसे मैंने भी किए। बट प्रैक्टिकली हर क्लास में ये तो बताया जाता था कि क्लास में पास कैसे होना है, बट किसी भी क्लास में प्रैक्टिकली ये नहीं सिखाया जाता था कि जिंदगी में कामयाब
कैसे होना है। और सबसे बेस्ट चीज हमारे सिस्टम की ये है कि यहाँ पे आपको आके सिखाया जाता है, समझाया जाता है, आपको प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि कैसे आप इस सिस्टम में आके ग्रो कर सकते हो। आपको वो तरीके सिखाए जाते हैं जिन तरीकों पे ऑलरेडी लोगों ने काम करके, न्यू एंड अपग्रेडेड तरीकों पे लोगों ने काम करके जिन पे रिजल्ट निकाला है, वो आपको सिखाया जाता है। और पिछले कुछ दिनों से शायद मेरे हिसाब से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके बताए जा रहे हैं, और मैंने भी उन तरीकों को समझा, अच्छे से समझा। इस जर्नी में 7 से 8 साल का सफर हो चुका है। आप लास्ट में मेरी फोटो भी देख सकते हो। 7 साल पहले कश्मीर का एक एरिया है श्रीनगर सिटी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिटी का नाम सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग शायद इधर आए भी होंगे। एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। बट ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हम लोग यहाँ पे फेस करते हैं। आप सब लोग देखते हैं कि चलो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स है, बट इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी और दिक्कतें भी हैं। चाहे वो हालात खराब होना, चाहे वो स्ट्राइक्स होना, हड़तालें होनी, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे रहते हुए यूथ को फेस करनी होती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिस वजह से यहाँ का यूथ उतना ग्रो नहीं कर पाता जितने बाहर के, आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के यूथ ग्रो कर रहे हैं या करते हैं। समझ रहे हैं? तो मैं भी इसी यूथ का पार्ट था, मैं भी इसी एरिया का पार्ट था। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, श्रीनगर एरिया से बिलोंग करता हूँ। 7 साल पहले, 7 से 7.5 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन इधर से स्टार्ट किया। आप खुद समझिए, आप में से बहुत सारे लोग पंजाब से होंगे, बहुत सारे लोग दिल्ली से होंगे, अहमदाबाद, गुजरात, अलग अलग स्टेट से होंगे। आप खुद सोचिए, टीम फायर में सबसे बेस्ट चीज क्या है? अगर मैं अभी यूट्यूब का चैट बॉक्स ऑन करूं और चैट बॉक्स में ये पूछूं कि कहां कहां से लोग बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोग अपना स्टेट का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप नहीं करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट फॉरएवर। ये सबसे बेस्ट चीज है फॉरएवर की या टीम फायर की, कि हमारा बिजनेस सिर्फ एक स्टेट में नहीं है, हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट हर स्टेट में। आप खुद देखिए, मैं जम्मू एंड कश्मीर जैसे एरिया से बिलोंग करता हूं, और यहां पे भी ये बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मेरा इस बिजनेस में आने का रीजन क्या था? आप लोगों को जैसे काम बताया गया, मुझे भी काम बताया गया। आप लोगों को जैसे बताया गया कि ये बिजनेस कैसे लाखों लोगों की हेल्प कर सकता है, मुझे भी बताया गया कि ये बिजनेस कैसे लाखों लोगों की हेल्प कर सकता है और कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताया गया कि यार प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और मैंने जब ये चीज देखी कि मैंने प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अब देख के तो अकेला विश्वास नहीं होता ना, तो ऑटोमेटिकली मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया। और एक चीज जब मैंने यूज करनी शुरू की, तो वहां से एक चीज समझ आ गई कि भाई एलो इज फॉर एवरीवन। एलोवेरी नेक्टर, एलोवेरा जेल, ये एलोवेरा करके जो प्रोडक्ट्स है, ये हर बंदे के लिए है, और हर दिन की जरूरत है, और हर जगह ये यूज होने वाली चीज है। तो मैंने बोला कि ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ डील करना शायद हर बंदे का ख्वाब होता है, और मैं अपने आप को लकी फील करता हूं कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहा हूं। और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी कि मैं अपने दोस्तों के साथ काम कर सकता हूं। एक रीजन काम में आने का, सबसे पहला रीजन ये मिल गया जो आप लोगों को ये बताया गया होगा प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना। मुझे सबसे बेस्ट रीजन काम में आने का सबसे पहला मिल गया कि यार मैं एक ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ, ऐसी इंडस्ट्री के साथ, ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहा हूं जो एवरीवेयर, एवरीवन और एवरी डे नीडेड है। समझ गए आप मेरी बात? ये हर बंदे को चाहिए, चाहे आप बहुत गांव से बिलोंग करते हैं या बहुत हाई क्लास सिटी से बिलोंग करते हैं, ये प्रोडक्ट्स हर बंदे की जरूरत है, ठीक है जी। तो दूसरी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, आप लोग भी एग्री करना, जो सबसे बेस्ट चीज मुझे इस इंडस्ट्री की लगी, वो क्या होता है? वर्क विद योर फ्रेंड्स। आप खुद देखिए, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आपके पापा के, आपके पेरेंट्स के, आपके बड़े भाई के, बड़ी सिस्टर के, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो पहले तो बहुत अच्छे दोस्त थे, कॉलेज में, स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे, बट हुआ क्या, उनकी नौकरी लगी, अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग हुई, उस रीजन से उनका रेगुलर मिलना कम हो गया। अब सबसे बेस्ट चीज क्या है इस इंडस्ट्री की? अभी बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे, वो चाहते होंगे यार मेरा जो दोस्त है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो हम कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसकी वजह से हम इकट्ठे रहें, हम कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे भी एक साथ चलें। तो ये भाई आप ही के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में आके यू कैन वर्क विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ काम शुरू कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज, एलोवेरा
का या प्रोडक्ट्स का, तो मुझे पता चल गया था कि भाई ये हर बंदे की जरूरत है। वैसे ही ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना भाई, ये हर बंदे की जरूरत है। इट इज फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ठीक है। ये हर बंदे को चाहिए और हर जगह चाहिए, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि फॉरएवर आज से 20 साल पहले भी था और आज से 20 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि ये जरूरत कभी लोगों में खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज, टीम फायर के साथ काम कर रहा हूं। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। हम बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आके खाब लेके आते हैं ना। बहुत सारे लोग जब इस सिस्टम में आते हैं, हमें अक्सर अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, हमें अक्सर हमने वो ख्वाबों को मार दिया होता है। बट जब इस इंडस्ट्री के बारे में समझते हो, आप अपने आसपास यंगस्टर्स को मिलते हो जो ऑलरेडी ये चीजें हासिल कर रहे हैं, तो वहां से आपके माइंड में ये आता है कि नहीं भाई, मैंने अपने ड्रीम्स को हासिल करना है, और वो हासिल करने में आपकी हेल्प टीम फायर करती है, ठीक है जी। अपनी बात करूं, मैं फिर से थोड़ा जाऊंगा आरडीओ में जाके। आरडीओ आप सबको पता होगा, हमारे जो आरडीओज हैं अलग अलग स्टेट्स के, ये मैं मोहाली आरडीओ में हूं, ठीक है। मोहाली आरडीओ में जाके मैंने इस काम को समझना शुरू किया। आप मेरे पीछे हनी देख रहे होंगे, रॉयल जेली देख रहे होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। हमारी अपलाइन कमल सर ने जा जाके हमारे को एक एक प्रोडक्ट के बारे में समझाया। उसके बाद ट्रेनिंग्स लगानी शुरू की कि कैसे ये इंडस्ट्री मेरे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है, आपको वो अच्छी लग गई, अब आपको तो अच्छी लगी, आप लोगों को कैसे बताओगे कि वो अच्छी है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया जा रहा है, उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। और मेरे को और आप सबको रेगुलर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। रेगुलर ट्रेनिंग्स क्यों दी जाती हैं? ताकि आप जो अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हो, आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ और अच्छे से इसके बारे में समझ पाओ। जब मैंने भी आरटीओ जाना शुरू किया, रेगुलर ट्रेनिंग्स लगानी शुरू की, अब समझिए मैं आपको तब की बात बता रहा हूँ, 2018 की बात बता रहा हूँ। तब हमारे को आरडीओज में जा जाके 2019 में ट्रेनिंग्स लगानी पड़ती थी। आज के टाइम पे तो आप घर पे बैठ के ट्रेनिंग्स लगा सकते हो। सोचिए, जून जुलाई के मौसम में लंबी लाइन में खड़े होके पासेस ले लेके ट्रेनिंग्स लगानी पड़ती थी। बहुत बार लाइन खत्म हो जाती थी और लास्ट वाले बंदों को पासेस नहीं मिला करते थे, क्योंकि ऊपर एंट्री फुल हो जाया करती थी। एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद भी पासेस नहीं मिलते थे। मनदीप सर के ऑफिस में ट्रेनिंग होती थी, अरविंद सर के ऑफिस में ट्रेनिंग होती थी। कितनी कितनी बार स्टेयर्स के नीचे खड़े रह रह के सुनना पड़ता था कि एक आध बार आवाज सुनाई दे जाए कि ऊपर क्या बोल रहे हैं, ताकि हम यहाँ से इस ट्रेनिंग से एक चीज सीख के चले जाए। अब आप खुद सोचो, आप कितने लकी हो। टीम फायर के कोर लीडर्स आपको सिखा रहे हैं, मनदीप सर आपको सिखा रहे हैं, तो यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पीपल, ठीक है। ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, और जब ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर एक बिलीफ आ गया, एक फेथ आ गया कि नहीं यार, अब मैं समझ चुका हूं कि कैसे लोगों को इस काम के बारे में बताना है। और मीटिंग्स करना शुरू कर दिया अपने एरिया में, ठीक है। अपने एरिया में इस काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। फेथ था फॉरएवर लिविंग में, टीम फायर में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेथ था कि नहीं यार, ये इंडस्ट्री ऐसी है जिस इस इंडस्ट्री को काम करते हुए, जितनी मेरी एज है उससे ज्यादा उम्र इस इंडस्ट्री को काम करते हो चुकी है। कितने सारे यंगस्टर्स हैं, कितने सारे, मतलब देखिए, शक करने का या डाउट करने का एक भी रीजन नहीं मिला फॉरएवर को या टीम फायर को, ठीक है। और आप देख सकते हैं बैक ऑफ द स्क्रीन अलग अलग एरियाज में मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, सिखाना शुरू कर दिया। अब आप खुद देखिए, इन लोगों को मैं तब सिखा पा रहा था जब मैंने पहले खुद सीखा था, जब मैंने खुद रेगुलरली ट्रेनिंग्स लगाई थी, ठीक है जी। उसके बाद टीम फायर कश्मीर करके हमने अपनी कश्मीर में टीम फायर को और एक्सपैंड करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ आवर सीनियर्स। छोटे छोटे ऑफिस खोलने शुरू कर दिए। ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ऑफिस खोलने शुरू कर दिया, हर एरियाज में ऑफिस एक्सपैंड करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सीनियर्स ने हर पॉइंट पे सपोर्ट किया, हर सीनियर ने सपोर्ट किया। अपने सिस्टम में आके सुपरवाइजर लेवल हो गया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो गया, एंड उसके बाद मैनेजर लेवल अचीव कर दिया, है ना। अप्रोक्सीमेटली 1 साल 3 महीने लगे, 1 साल 3 से 4 महीने लगे मुझे मैनेजर लेवल को अचीव करने में। आप खुद सोचिए, एक वो लड़का जो एक ऐसी स्टेट से बिलोंग करता है जहां पे 1 महीने में 30 दिनों में 20 दिन के लिए तो नेट नेट कनेक्टिविटी बैठी होती थी, टोटल एरिया बंद होता था, कर्फ्यूज लगते थे, हालात खराब हुआ करती थी। उस एरिया से आके अगर मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं मैनेजर बन सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस टीम, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते हैं, ठीक है। काम करना, बेसिक काम को समझा, ट्रेनिंग्स लगाई, रेगुलरली इंप्रूवमेंट्स की, ठीक है। एंड उसके बाद कार प्लान अचीव कर लिए, मिलीनियर्स क्लब अचीव कर लिया, ठीक है। एंड
पहली गाड़ी परचेज की एक्सयूवी, है ना? बहुत सारे लोगों का ख्वाब होती है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार काश मेरे पास ऐसी गाड़ी हो। आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स देख रही हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स देख रही हैं जिनको ये गाड़ी अच्छी तो लगती होगी, बट इससे पहले फॉरएवर से पहले उधर इस गाड़ी तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं भी आप ही की तरह था। मैं भी इन गाड़ियों को जब देखता था, मैं 10 बार मुड़ के देखा करता था कि यार काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो। बट इधर तक पहुंचने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था। और सबसे बेस्ट चीज इस सिस्टम की लगती है कि 1 साल 8 से 9 महीने की मेहनत के बाद मैंने अपने दम पे ये गाड़ी परचेज कर ली थी। माय फर्स्ट कार एक्सयूवी, जो मैंने फुल कैश पे ली थी। एक्सयूवी 500 मैंने सिस्टम से परचेज कर ली। अभी भी मेरे पास है, तकरीबन 1,30,000 किलोमीटर चल चुकी है। अगर मैं इसको अभी तक आपकी बात बताऊं, अप्रोक्सीमेटली 7-8 लाख का डीजल ये तो अभी तक पी चुकी है, ठीक है? तो ये तब पॉसिबल है जब मैं ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट बना था और बना हूं, ठीक है जी। इसके बाद सीनियर मैनेजर लेवल अचीव किया। खुद सोचिए, एक ऐसे एरिया से आना जहां पे लोगों की सोच सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब तक लिमिटेड थी, जहां पे लोगों की सोच थी कि यार चल नौकरी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, जहां पे लोग 100 में से, हजारों में से हार्डली एक या दो बंदे सोचते थे बिजनेस करने का। उस एरिया से आके फॉरएवर में एक अच्छे लेवल पे आना कितनी बड़ी बात हो सकती है। और अकेला मैं नहीं हूं, आज मेरी टीम में ही बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स, बहुत सारे मैनेजर्स बन चुके हैं, बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर्स बन चुके हैं। तो दिस इज द, ये एक सीड है जो आप आज प्लांट करोगे ना, ये आहिस्ता 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 आपको फ्रूट देगा, आपको फल देगा। तो आज जो आप सीड प्लांट कर रहे हो ना, उसकी अच्छे से देखभाल करो, उसको अच्छे से खुराक दो, उसको अच्छे से पूछो, है ना? ताकि आपका जो फल हो, आपका जो एंड रिजल्ट हो, वो बहुत बड़ा हो, ठीक है जी। तो सीनियर मैनेजर लेवल अचीव कर लिया, ग्लोबल रैली क्वालिफाई की, 2 बार ग्लोबल रैली क्वालिफाई की, टीम फायर कश्मीर में मैनेजर्स बनने शुरू हो गए। कभी हमने एएस से काम शुरू किया था, एज असिस्टेंट सुपरवाइजर काम शुरू किया था, मैनेजर्स बनने शुरू हो गए। हर महीने हमारी टीम में 1 से 2-3 मैनेजर्स निकलते ही निकलते हैं, ठीक है? एंड इसके बाद इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए, छोटे छोटे सेमिनार्स और ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए, छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए। उसके बाद हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छी गैदरिंग में, 1000+ लोगों की गैदरिंग, एएस की गैदरिंग उस इवेंट में थी। और सबसे बड़ी बात, हमने उस इवेंट में एक्स सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इनवाइट किया था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अब आप खुद देखिए, इस इवेंट की सिक्योरिटी पे ही 2 डीएसपी हमारे गेट पे खड़े थे। समझो, ये दम है फॉरएवर का, समझे? 2 डीएसपी गेट पे खड़े थे, इतनी सिक्योरिटी हमारे लिए थी, इस इवेंट के लिए थी ना, आप सोच ही नहीं सकते हो। हजार हजार बंदा हमारा इस इवेंट में आया था, और सारे का सारा यूथ था। और खुद सोचो, एक सीएम लेवल का बंदा अगर इस इवेंट में आ रहा है, तो आप खुद सोचो फॉरएवर और टीम फायर किस लेवल पे काम कर रही है। और मैं आपको आज भी बोलता हूँ कि आपने बहुत बार इनको न्यूज़ पे देखा होगा, सुना होगा, आज भी देखते होंगे, आज भी ये फॉरएवर की और टीम फायर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है जी? तो पहली गाड़ी तो सबको अच्छी लगती ही है। दूसरी गाड़ी, जब मैंने आपकी तरह काम करना शुरू किया था, जब मैंने आप ही की तरह एक्सयूवी ली थी, तो मेरे को कभी ना कभी तो था यार, चल एक्सयूवी तो ले ली, बट इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है? सीनियर्स बोला करते थे, "भाई, तुम सोचने वाले बनो, देने वाली तो फॉरएवर है। तुम काम करने वाले बनो, देने वाली तो फॉरएवर है।" तो काम करना शुरू किया, मेहनतें शुरू की, एक्सयूवी के बाद रुके नहीं, काम करते गए, मेहनत करते गए। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरे को आज भी याद है, जसप्रीत सर ने बीएमडब्ल्यू ली थी। मैं हमेशा अपने सीनियर से इंस्पायर होता था। मैं हमेशा इनसे मिलके डिस्कस किया करता कि सर कैसे पहुँचना है। और मेरे जितने सीनियर्स हैं, सब के सब हमेशा गाइड करते, सब के सब हमेशा सिखाते थे कि कैसे तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। आइडल मैंने आउट ऑफ फॉरएवर नहीं बनाया, आइडल मेरे फॉरएवर में ही थे, जिनको देख-देख के मैं यहाँ तक पहुँचा। अपनी खुद के नाम पे खुद की परचेज़ की मैंने बीएमडब्ल्यू 330i एम स्पोर्ट्स, जो तकरीबन 60 टू 70 लाख रुपीस की गाड़ी है। और सबसे बेस्ट चीज़ इसमें ये है कि एक 25 साल की उम्र पे अगर आप एक बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी ओन कर पा रहे हो ना, तो आप खुद देख लो कि बिज़नेस कितना बड़ा हो सकता है। आप खुद देख लो कि बिज़नेस का फ्यूचर कितना बड़ा हो सकता है। आप खुद देख लो कि आप इस बिज़नेस से रिज़ल्ट्स जो है ना, वो कितने बड़े निकाल सकते हो, ठीक है जी? और सबसे बड़ा सवाल आपके साथ, मेरा फ़ोटो आप देख सकते हो कि हमारे फ्लैट के नीचे एक गाड़ी खड़ी थी, ऑडी करके, है ना? मैंने जाके उससे सेल्फ़ी खींची थी, है ना? और एक ही सवाल मैं आपको पूछता हूँ, ये तब था जब मैंने फॉरएवर शुरू की थी, और ये आज की फ़ोटो है। आपसे एक ही सवाल है,
इफ आई कैंट व्हाई कांट यू? अगर मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो? हर बंदे के घर पे ज़रूरतें हैं, हर बंदे के घर पे नीड्स हैं, हर बंदे को उसकी ज़रूरतें रोज़ एहसास दिलाती है कि नहीं भाई तुझे इससे बेटर करने की ज़रूरत है। गाड़ियों के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, बट अपनी फैमिली के लिए करो, अपने आप के लिए करो, अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए करो, ताकि आने वाला फ्यूचर को जब आप देखो ना, अपने पास्ट को देखो, तो आप बोलो कि नहीं भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने आप को देख के बोलो, और मैं आज अपने आप को देख के बोलता हूँ कि नहीं अर्श, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि मैंने जो मेहनतें की उसका रिजल्ट ये है। आज मेरे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उस एरिया में ये गाड़ी किसी के पास नहीं है। हाँ, गाड़ियाँ बीएमडब्ल्यू बहुत हैं, बट हरियाणा नंबर, दिल्ली नंबर, बट जेके नंबर की गाड़ी किसी के पास नहीं है, ठीक है? और सबसे बेस्ट चीज़, आई एम अर्श, आई एम फॉरएवर। अगर इफ आई कैन डू, यू कैन आल्सो डू, ठीक है? अब ये छोटी-सी मेरी जर्नी थी आप लोगों के साथ। मैं होप करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी, बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि सफ़र जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मेरी स्कूल की फ़ोटोज़, मेरी कॉलेज की फ़ोटोज़, और कहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक की फ़ोटोज़। अब आप सबके माइंड में कुछ ना कुछ सवाल होंगे कि सर देख तो लिया, गाड़ियाँ देख ली, काम देख लिया, समझ गए कि आप सोर्सिंग मैनेजर हो, गाड़ियाँ देख ली, टीम फायर देख ली, इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी टीम, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी? तो जो नेक्स्ट पीपीटी है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, तो ज़रूर पार्ट रहें, क्योंकि यही पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। क्या ऐसा करें जिससे हमारे ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हों, ठीक है जी? आपके सामने कुछ मेरी फोटोज़ है ना, कॉलेज, ट्रेनिंग्स, और जब कामयाब हो गए तब की, ठीक है? ये इंडस्ट्री बेस्ट क्यों है और कैसे है, आपको पता ही है। अब क्या कुछ करना है जिससे हमारा काम और अच्छा हो जाए, ठीक है? 2 मिनट। ठीक है जी। पॉजिटिव थिंकिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस सिस्टम में आके ग्रो करना चाहते हो, अच्छी लेवल पे अपना बिजनेस को लेके जाना चाहते हो, सबसे बेस्ट चीज क्या करनी पड़ेगी? अपने एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करनी पड़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके अंदर बिलीफ हुआ तो आप इस सिस्टम में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो आपको आगे, वो आपकी सक्सेस में बहुत आगे जाने में आपकी हेल्प करते हैं। बोलते हैं आपको अगर नेगेटिविटी से दूर रहना है तो अपने माइंड को फिल करो पॉजिटिव थिंग्स के साथ, ठीक है ना? अगर आप किसी को अलाउ कर रहे हो अपने माइंड में नेगेटिविटी डालने के लिए, तो आप अपनी जर्नी को खुद छोटा कर रहे हो। हमेशा उन लोगों के साथ बैठते करो जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करें लाइफ में, जो आपको ग्रो करने के लिए मोटिवेट करें, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। तो हमेशा एक चीज, अगर आप बिजनेस में आके कामयाब होना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा अपने आप को उन लोगों के साथ उस एटमॉस्फेयर में रखो जहां पे आपको पॉजिटिविटी मिले, जहां पे आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बने। और वो तब हो पाएगा जब आप एक ऑफिस का, एक सिस्टम का, एक ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे, ठीक है? जैसे आप पिछले कुछ दिनों से लगा रहे हैं ट्रेनिंग्स, ऐसे ही रेगुलर अपनी अपलाइंस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आपको एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एक सोर्स ऑफ बिलीफ मिलता रहे, एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मिलती रहे, ठीक है जी? उसके बाद गोल्स एंड टारगेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने गोल्स लेके चलें। गोल्स के बगैर और टारगेट्स के बगैर आप इस बिजनेस में आगे कामयाब नहीं हो सकते। मेरे को आज भी याद है जब अरविंद सर की, ओजला सर की ट्रेनिंग्स लगाया करते थे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस गोल्स को दिया करते थे कि गोल्स और टारगेट आपकी जिंदगी में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा हेल्प तब कर सकते हैं अगर आपने वो गोल्स को राइट डाउन करके लिखा हुआ है। अगर आपने वो गोल्स को लिखा हुआ है और वो हमेशा आपके सामने है, चाहे आपका फोन का वॉलपेपर है, चाहे स्क्रीन है, चाहे आपकी कबर्ड है, आपने अगर कहीं, जहां जहां आपको वो गोल्स दिख रहे हैं, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वो कामयाब होने की। जब मेरे को काम बताया गया था, हमने भी गोल सेटिंग की ट्रेनिंग लगाई थी, और हमें भी बताया गया था कि यार अगर आप गोल लिखोगे तो ये 100% पॉसिबल होती है। जब हमने भी पहली बार लिखा था ना, तब हमें भी लगा था यार पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट मैं आपको सच बताता हूं, अगर इतने सारे लोग मिलके बोल रहे हैं ना कि नहीं आप गोल्स राइट डाउन करो, तो 100% ये चीज झूठ नहीं है, ये प्रूवन प्रूवन फैक्ट है, ठीक है? मैं आपको बताता हूं कि गोल्स को नोट डाउन करिए, टारगेट्स को नोट डाउन करिए और उन पे काम करिए, ठीक है? उन पे रेगुलरली काम करिए, उन पे रेगुलरली एफर्ट करिए, ठीक है?
और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जितना दिमाग से पूछोगे उतना ही बताएगा, है ना। अगर आप दिमाग को बाउंड्री दे रहे हो कि नहीं भाई तुझे सुपरवाइजर ही करना है, तो वो आपको कभी एएम के लिए सोचने पे मजबूरी नहीं करेगा। अगर आप दिमाग को ये बाउंड्री दे रहे हो कि नहीं भाई तुझे सिर्फ 5,000, 10,000, 15,000 का चेक बनाना है, तो कभी वो लाख रुपए तक सोचने के लिए आपको मजबूर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो माइंड को पुश करो मैक्सिमम लिमिट्स पे, और वो तब पॉसिबल है जब आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में गोल्स और टारगेट्स को सेट करोगे, ठीक है जी। उसके बाद पैशन। पैशन का मतलब चाहत, चाहत होनी चाहिए। चाहत होनी चाहिए इस सिस्टम में आके ग्रो करने की, चाहत होनी चाहिए कि भाई मैंने करना ही करना है। देखिए 2 चीज़ें हैं फॉरएवर में, 2 चीज़ें हैं सिस्टम में, ईदर फुल वे और नो वे। या तो पूरा फॉरएवर में घुस जाओ या तो घुसो ही नहीं। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे रिजल्ट्स बहुत हैं, जहाँ पे ग्रोथ बहुत है, बट वो तब पॉसिबल है जब आप इस इंडस्ट्री में, बोलते हैं ना, जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक आउटपुट नहीं हो सकता है। तो हाँ, ये आपको पैसा, ये आपको कामयाबी, ये आपको ग्रोथ बहुत देगी, बट उसके लिए आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट भी करेगी, आपके अंदर चेंज एक्सपेक्ट करेगी, आपके अंदर चाहत एक्सपेक्ट करेगी, ठीक है? तो उसमें कोई कमी पेशी नहीं करो, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने ऊपर, अपने पैशन, क्योंकि जितना आपके अंदर पैशन स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना आप ये लोगों को दिखा पाओगे, ठीक है? चाहत से काम करो, दिल से। जब आप पैशन से काम करोगे, दिल से काम करोगे, चाहत से काम करोगे ना, तो आपका काम डेफिनिटली बहुत आगे जाएगा, ठीक है? मास्टरी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में मास्टरी करो। लोगों से बात कैसे करनी है, दिन-ब-दिन उसको इम्प्रूव करो, दिन-ब-दिन उसको बेस्ट करो, हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन लोगों से बात करना सीखो, इम्प्रोवाइज़ करो, अपनी गलतियों पे काम करो, क्योंकि हमेशा याद रखो जो आपकी फर्स्ट फर्स्ट इंटरेक्शन होती है ना, वही बंदा आपकी इमेज क्रिएट करता है माइंड में। हम अक्सर लोगों से फ़ोन पे बात करते हैं, और जब हम पहली बार बात करते हैं ना, वैसी आपकी अगले बंदे के माइंड में इमेज बनती है। तो कम्युनिकेशन को सीखो। जब हमने इस बिज़नेस में काम करना शुरू किया था, उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ सोर्सेज़ थे, जहाँ से हम इस काम को सीख सकते हैं। आज आप लोगों के पास कितने सोर्सेज़ हैं। आज आपके पास यूट्यूब है, चैट जीटीपी है, कितनी चीज़ें हैं जहाँ से आप इन चीज़ों को सीख सकते हो और बेस्ट कर सकते हो, ठीक है? बोलते हैं लाइफ इज नॉट अबाउट व्हाट यू फील, लाइफ इज अबाउट व्हाट यू एक्सप्रेस। बोलते हैं जिंदगी वो नहीं होती है कि आप फील क्या करते हो, जिंदगी वो है कि आप लोगों को क्या एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि व्हाट यू फील, ठीक है? समझ गए? क्रिएट टीम। टीम बनाने पे एफर्ट दो, बेस्ट टीम बनाने पे एफर्ट दो, और टीम बनाने के पीछे कुछ सिंपल फॉर्मूलाज हैं। नॉलेज प्रोवाइड करो उन सब लोगों को, 3 पीस के बारे में सिखाओ, उनको सिखाओ कॉलिंग कैसे करते हैं, उनको सिखाओ इनविटेशन कैसे करते हैं, उनको सिखाओ ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है, उनको सिखाओ कि कैसे वो डे टू डे लाइफ में, डे टू डे टास्क में इंप्रूवमेंट करके अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एक्साइटमेंट का बिजनेस है। अगर आप एक्साइटमेंट से इस बिजनेस पे काम नहीं करोगे, तो शायद आपको ये बिजनेस रिटर्न में कुछ नहीं देगा, ठीक है? तो एक्साइटमेंट से काम करो। एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि देखिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो दम रखती है कि आपके जो सपने हैं ना, वो अगले महीने ही पूरे हो सकते हैं। आपके जो सपने हैं ना, वो 1 साल में पूरे हो सकते हैं। आपके जो सपने हैं ना, वो 6 महीनों में पूरे हो सकते हैं। बट होंगे उसके जिसके अंदर जितनी चाहत है, होंगे उसके जिसके अंदर उस ख़्वाब तक पहुँचने की, उस सपने तक पहुँचने की एक्साइटमेंट है, ठीक है जी? उसके बाद टाइम, इमोशन एंड पीपल मैनेजमेंट। अपने टाइम्स को, इमोशंस को, पीपल को मैनेज करना सीखो। डोंट इन्वॉल्व पीपल इन लोगों को बिज़नेस में सिर्फ़ इन्वॉल्व नहीं करो, उनको वजह दो बिज़नेस में रहने की, ठीक है? उनको वजह दो बिज़नेस में काम करने की, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फर्स्ट थिंग गो फर्स्ट। सबसे पहली प्रायोरिटी काम होनी चाहिए, उससे ऊपर की कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप काम सही तरीके से करोगे, अगर आप काम को टाइम दे रहे हो ना, तो ऑटोमैटिकली आपके सारे काम बन जाएँगे, ठीक है? प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। देखो आप समझते हैं यूपीएससी के पेपर्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े लेवल्स के पेपर्स होते हैं, जहाँ पे बंदा आईएएस, आईपीएस बनता है, वो उसके लिए ना अपने आप को कमरों में बंद कर देता है, 12-12 घंटे पढ़ता होता है, दुनिया से अलग हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आज किए हुए एक्शंस का रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए ना चाचाओं के, कज़नों की शादियों को, बर्थडे पार्टीज़ को छोड़ दो। कुछ टाइम के लिए अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो, क्योंकि आई प्रॉमिस यू वो प्रायोरिटी आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री बदल देगी, ठीक है ना? रिक्रूट, रिटेन एंड राइज़, ये 3 चीज़ें याद रखिए। रिक्रूट करो लोगों को, रिटेन करो, रिटेन कैसे होगा? उनको डेवलप करके, उनको सिखा के, उनको नॉलेज प्रोवाइड करके, और राइज़ करना सिखाओ। राइज़ करने का मतलब उनकी हेल्प करो, अचीवमेंट्स में उनकी हेल्प करो।
ग्रो करने में, सिखाने में, ठीक है? उसके बाद बिल्ड अ बिज़नेस ऑन द फाउंडेशन ऑफ ट्रुथ, ऑनेस्टी, एथिक्स एंड रिस्पेक्ट, है ना? एक बिज़नेस बिल्ड करो जहाँ पे लोग जेन्युइनली आपको रिस्पेक्ट करें, आपकी ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट करें, एथिक्स फॉलो हो, है ना? और जहाँ पे इमोशंस पे काम हो, ठीक है? तो अगर आप एक ऐसा बिज़नेस आज बिल्ड कर रहे हो, चाहे आप एएस हो, सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, तो आई प्रॉमिस यू ये बिज़नेस जो है ना, ये आपका पूरी ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ों पे काम करो। आई एम अर्श एंड आई एम फॉरएवर, ठीक है? आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ। मैंने इस बिज़नेस को स्कूटी से शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचने का दम सिर्फ़ और सिर्फ़ फॉरएवर रखती है। अब आप समझिए, आज मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो और एंड पॉइंट क्या है? मैंने आपको ये बता दिया कि क्या-क्या स्टेप्स चाहिए आपकी जर्नी में बेस्ट रिजल्ट्स निकालने के लिए, और आपको ये भी बता दिया कि वहाँ तक पहुँच के आपका फ्यूचर, आपका रिजल्ट कैसा हो सकता है। तो मिलके मेहनत मारते हैं, मिलके बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप जो आज का सेशन होगा, वो आपके लिए अच्छा रहा होगा। आई होप आज के सेशन में से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आई होप आज के सेशन में से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन और एक डिसीजन मेकिंग मिली होगी, और मैं आप सबको लास्ट पे यही बोलना चाहता हूँ कि अभी भी हमारी क्लोजिंग है, इसके लिए बेस्ट एफर्ट्स दीजिए। दिस मंथ कैन बी द बेस्ट मंथ फॉर यू। अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सकें। तो थैंक यू टीम फायर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपने ग्रुप्स में अच्छे अच्छे रिव्यूज दे दीजिए ताकि आपके जो एएस आज ट्रेनिंग में नहीं थे, अगली बार की वो कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें। तो जो भी ट्रेनिंग्स आने वाले टाइम में होने वाली है, 9 बजे कल या परसों, उनका पार्ट बने रहें, उनको छोड़िए नहीं, क्योंकि हर दिन आपको नई इंस्पिरेशन और नई सीख मिल सकती है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।